Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, Today we start the array operations. ठीक है? But we need a lot of C stuff to do the array operations. ठीक है? The first thing is that we do everything in the functions. Number one, so we need to know functions. Second thing is we are talking about arrays, and when we pass array to the function, array itself is a pointer. Array name is a static pointer, like I told you yesterday. It is static pointer, so it is passed by reference, not passed by value. We will revise that also. Okay, so it's all the pointers. Okay, we need to know functions also. We need to know how to pass and how to return and all those things. So to do that, we will just create one simple function. Okay, we have a function, say for example its name is fun, and we are sending some value to it. Say for example we got here two values, couple of values, int a and b. I got two values, and a is, say for example, 7, and b is, for example, 20. Okay, now I am sending this a and b to it. I am saying a comma b. I'm sending this a and b to the function. I'm sending a and b to the. Now this function is, this is the call. This is what, this is called the function, because we don't write everything in a main. In the main we only just like create buttons. Okay, like a calculator, you have a button, plus button, it does the plus. Minus button, now if everything is on the, all the what plus does is everything on the keyboard, then it will mess up. Okay, it will be easier to have only the buttons on the interface. Like you have website. Now in a website, what you do, you have a first page, you have only the buttons, home button, teacher, student button, faculty button, whatever button, if it's a college management system, right? Similarly, we need to have that menu system in our main, and the code which we write for that particular job is to be written in a separate function. Separate. Now this separate function can be debugged separately, can be later used also. Maybe I use that same function for other code also, other program also. It can be reused, and there will be no clutter in my main. And tomorrow if you come after 1 month to see what's happening in this code, it will be easy to read also. Maybe we are in a industry working together, 500 programs are working together. Okay, now my job was to develop something, now I am giving to this particular developer. Now he may also be able to understand properly what's happening. Okay, because readability is good. So functions, we all the time use functions because this is the procedural programming. The C is what, we don't write everything in a one slot. Okay, rather what we do is we break the code into chunks, the blocks, the modules. What do you call them? Modules. We call them as what? And here we call them as the functions. Okay, this is function a, b, c, d, and this is a tons of code here. Okay, now in a main I will only call this a, b, c whenever required, and I require a again, I will say a again. I require b again, I will say b again. I require a again, I will say a again. I call a this function. Now again, if I write the code here only, I have to write this piece of code here also, this piece of code here also, this one. Okay, now here I have to write only single time. That's also the advantage. See, for example, this piece of code, this function is used 100 times in my code. I don't need to write it 100 times, rather I will write it one time and call it only. And here it will be kind of manual, like a buttons, A, B, C, and so on. And this will work for us, right? Now the variables which we pass, okay, I am passing some variables to it, the function. Now this is the function call. Function definition has to be outside main. It can be within main, it can be before the call, it can be before the main, it can be anywhere you like. But better is to keep it separated from the main, and that too after the main. This is main here, main ends here. So function definition should be outside the main, so that main looks neat and clean. Does it make sense? So first of all, this function I have here, the first thing, the signatures of the function is, the first thing we have is a return type. What does it return? Right now I am not returning anything. My function is not returning anything. If my function returns anything, then I have to say, not necessarily int, maybe it returns character, it returns something else, it returns an array, it may return anything. Okay,
For example, this main is also a function, and we have this is the function definition main, and this is the operating system who calls it, and it has first the return type. So it is returning int, because at the end it is returning something, it's returning 0. Even if we don't write it, we can say here then void, we can say here what there what void, okay, and I don't need to return anything. This can also work, okay, because I'm not returning anything. But if I'm returning anything, what is the data type of that? 0 is an int. I have to tell it here that it is an int which main returns, and it returns where जहाँ पे इसको call आई है. This guy was called from by the operating system, so this will 0 will return to the OS. But basically it means when you say return 0, it means nothing actually. 0 means nothing, but it actually means, like, I usually give this example. If you go from here, I will understand you are gone, but at the gate you say Assalamu alaikum sir, we are going, bye bye. Okay, that's a bye bye. That we are telling operating system bye bye, that means we are done. If you don't say, still operating system understands that the code is over, because he's the boss, he's seeing, right? But it's a better way to tell him. Maybe there is some error, so we may return some error, okay, in advanced programming. But here my function not returning anything, so what should be the first thing the function definition has is the data type, return type. Then the function name, whatever the function name was, that was fun, so is it fun. Now these arguments which we pass, we need to cache them here, okay. So I say int, say for example x, int y. Now what I am doing here is I am copying this a, the value of a, into x, right? One second. What happens is this value of a, what's the value of a? Value of a is 7. This 7 is copied into x, and this b is 20. This b is copied into y. 20 is copied into y. So now here x will be, there was in the memory like a and b. A was having 7 in it and b was having 20 in it. Now somewhere in the memory are two variables like x and y. X is having 7 in it and y is having it. Not necessarily it will be like an array, not, yes, it is initialized here, your local variable here, your local variable where, that's what I'm initializing them, okay, in this function. So this a and b has nothing to do with this x and y. They are copied, they are two different variables, they are two. Sometimes we just write it like this, we write here a and b. It becomes much easier because I am sending this a to this a and b to this b. But this a, the top a, the main जो main में a b है, they are different in the memory. A is 7 and b is somewhere 20. This a and b is again 7, b is 20, because I am copying them, okay, I am putting this a into this a and b into this b, but they are different, totally different, they are different variables. When this function ends, when this function, this a and b is born when this function is called, when this function is, code comes here, starts executing this thing, operating system starts executing this thing, they get born. When this brace hits, they are killed, they are no more, okay, their value will be killed, they will be killed, okay, their scope is only within this function. Similarly, this a and b, its scope is within this function. Outside them, it won't be, available. If you try to access here a and b, it will tell you where is a and b. You need to initialize them first. Does it make sense? Okay, this is the one thing. Second thing is, even though I have this a and b here, okay, this a is nothing to do with this a. For example, here I try to swap them. I try to what? I am trying to swap a and b. I say in temp, and I say into the temp, I put first the a. Now a is saved in the temp. Now I can override the a is equal to b, and b equals to temp. This is how we swap, right? Yes. Now a is put into the temp. Now जो a में 7 था वो temp में गया. अब a में override कर सकता हूँ, क्योंकि जो a में 7 था वो temp के पास है, save करके है.
अब उसमें मैंने b डाला यानी कि 20 डाला, a में क्या गया अब 20, a में गया 20 और b में मैंने फिर वापस क्या डाला 7 जो टेम्प में था 7। तो अब पहले जो हमें इस फंक्शन भी आए थे a में 7 था b में 20 था, अब a में 20 है b में 7 है ना। सो इफ आई call it here, I am saying printf \n, इसको पॉज करते हैं ताकि वीडियो की लेंथ कम आ जाए। So what we have written here is before function call value of a is percentage d, that is a, and value of b is percentage d, यानी कि before call क्या था और after call क्या था। और इसके अंदर जो है यहाँ पे मैं after inside करूंगा, inside function हूं ना मैं, inside function क्या हो रहा है, inside function है, inside function ठीक है। वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी, वैल्यू यहाँ पर भी ए बी ही है लेकिन यहाँ पे चेंज होगा ना, ठीक है, यहाँ पे स्वैप होगा। देयर इज सम इशू, व्हाट इज द इशू। हाँ, एक चीज यहाँ पे याद रखने की, व्हेन यू राइट द फंक्शन कॉल एंड फंक्शन बाद में है ना, फंक्शन बाद में जो कंपाइलर आएगा वो यहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, करते करते वो फंक्शन के पास पहुंचा, उसको पता ही नहीं है क्या है फंक्शन क्या चीज है। तो उसको उसके लिए पहले कंपाइलर को बताना चाहिए हमें कि भाई साहब जो ये फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप वाइड है और इसका नाम फंक्शन है और इसको हम एक इंटीजर वेरिएबल भेज रहे हैं। इंट ए बी लिखने की जरूरत नहीं है, दो वेरिएबल भेज रहे हैं ना, तो इंट लिखने की जरूरत है कि इसे बोलते हैं प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं कि हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि उसको तैयार रख रहे हैं हम, इट इज प्रोटोटाइप। हाँ, इज इट राइट स्पेलिंग, तो लग ही नहीं रहा। एनीवेज व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम कह रहे हैं कि फंक्शन कंपाइलर को तैयार रख रहे हैं कि ऐसी फंक्शन आने वाली है जिसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है और दो इंटीजर पास कर दिए। अब इसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, एटलीस्ट यू विल बी प्रिपेयर्ड कि दिस फंक्शन आने वाली है और इस तरह से इसको मसला है, ठीक है। अब ये चल रही है, जब हमने इसको क्या कहा, बिफोर फंक्शन वैल्यू ऑफ a is 7, वैल्यू b is, इनसाइड फंक्शन वैल्यू ऑफ a is what, b is 7, उल्टा हो गया ना, ये स्वैप हो गया है। लेकिन जब हम वापस आ गए a में 7 है b में 20 है, ये बैकस्लैश है ना, हमको हटाना था ये वाला, एक ही लाइन में आना चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि जब हमने पास किया इसको, हमने पास बाय वैल्यू किया, हमने वैल्यू पास किया, ये 7 डाला किसमें, इस a में, इस ये b 20 डाला किसमें, इस b में। अब इस a और b को आपने क्या किया, इट डजंट मैटर फॉर दिस a एंड b, क्योंकि ये दो अलग है, वो दो। अब मैं चाहता हूं कि ना जो ये a एंड b है जो यहाँ पे हो वो इसी a एंड b पे हो, ठीक है ना। जो इधर a में है और इधर b में जो है और जो इधर आप काम कर रहे हो इस a एंड b के ऊपर, ये इसी a एंड b के ऊपर काम करें। यानी कि पहले मैंने काम जो किया था that was like this, that I was saying कि ये मेरा a एंड b था, ये a था कहीं पर और ये b वैल्यू कहीं पे था, ये जगह थी उसकी, इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 1 to 4 था और इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 1 to 8 है, ठीक है। और ये a एंड b जो फंक्शन वाला है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया, इसका 7 इसमें कॉपी हो गया, इसका 20 इसमें कॉपी हो गया, फिर आपने इसको 20 डाला, इसमें 7 डाला। कैसे, इसमें 7 20 था, पहले आपने टेम्प वेरिएबल कर दिया, इस 7 डाला टेम्प में, पहले सेव गया, अब ये 20 इसमें ओवरराइट किया, फिर ये 7 इसमें डाला आपने। अब ये इस पे ऊपर आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ए में 500 डाला, इट डजंट मैटर यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि भाई साहब चूंकि मैं काम इन पे कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इन जो भी यहाँ पे काम होगा वो इन्हीं पे होना चाहिए। तो उसका मतलब है कि जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, I should not send the value, I should send the address, I should send what, I should send, जब मैं इस a का एड्रेस इस a को भेजूंगा, so it will be pointing to the same location। जब मैं इस b का एड्रेस भेजूंगा इसको, इस b will point to the same location, so whatever will happen on the ab, it will happen to the actual ab of the main, ठीक है ना। but for then when I send the address, I can't have a normal variable, because जब मैं 7 भेज रहा था तो मेरे को normal variable चाहिए। when I send the address, who will catch the address, the pointer can catch the address, only pointer can catch the address, so that means this a and b cannot be normal variables, they have to be what,
दे हैव टू बी पॉइंटर वेरिएबल्स। यानी कि जब मेरे पास ये ए एंड बी जो मेरे पास था यहाँ पे, ए में 27 था, बी में 20 था, इसका एड्रेस है 124, इसका एड्रेस है 128। व्हेन आई सेंड टू दिस ए एंड टू दिस बी 124 and I am sending to this B 128 the address of A. So I am sending ampersand of A. I am sending ampersand of B when I send. First thing that. Second thing is this A has to be what? Pointer variable. This can't be int A. This has to be int asterisk A. This can't be int B. It has to be int asterisk B. Right? Then we can use the same what we did yesterday. The value at address and whatever. So now you can help me here. So now what I am trying to do is I am not sending the A and I am not sending the B. I need to send the address of A. This is called pass by reference. Exactly. It's an ampersand. Nice. Ampersand A and I am sending address. I am sending what? Because I want whatever happens in a function that should happen all in a original variable A and B. Right? Now when I am sending the address of A and address of B, who will cache them? Can a normal variable cache the address? Right? Because this whatever you are sending here to the function, damn, not this one, damn. When you're sending this will be copied into this A and this will be copied into B. No matter what you write here, B or you write A, you can write anything. You can write C, you can write X, you can write your name, whatever it is, the variable name. Okay, but now you are sending what? So this cannot be a normal variable. Normal variable can't take address. It has to be, how we declare pointer? Int asterisk A. Right? When I say declaration time, we use asterisk to declare a pointer. So that means this has to be firstly a pointer and this has to be a. Now what is an A? This asterisk A. What is this pointer A of this function? What it has? It has the address of, that is address of A. Ampersand means address. What is in the B? Address of B. I'm not teaching you, I mean actually data structure not on, but I'm mixing up. I'm teaching C and data structure so that you will not have any issues. Okay? Address of A and address of B. Right? Now if I say here temp, I'm declaring a variable temp because I want to swap. I want to swap not the addresses, I want to swap the values. First thing is that whatever is in address of A, that is 7. Whatever is at the value at the address of B is 20. Now I want to swap this 7 and 20. Okay, so that therefore I need a normal variable temp which can hold this 7, which is at the address of A, which is at the address of, right? Now I am saying this is A, which was having 7 and B is having what? 20. Now A has the address, say for example 124, and B has the address of 128. What is this? The function A and this B. In the function this A and B has, this A has 124 and B has in it 128. I cannot drop into temp 124. I want to drop into temp what? 7. Into the temp I want to drop 7. Where is 7? That is in A. But here I have the address of A. How can I access this 7 using the address of A? Again asterisk. Value at address. Value at, because if I say A, temp is equal to A. If I say temp is equal to A is having what? 124. That's address. I don't want to drop address into the temp. I want to drop what? Value at address. Value at this address 124. What is the value at address 124? That is, so 7 has to be in the temp. So what should I do? Change here. Asterisk A to say value at address A. What we'll do here is equal to asterisk B. Asterisk A means value at A, that is this one should be, we drop into it what? Asterisk B, value at address B, that is 20. So 20 will drop into the 7. Okay, and also then, so let us change it now. So we say here temp is equal to asterisk A equals to whatever this one equals to asterisk temp. Why not asterisk temp?
because temp is a normal variable. Temp is not a pointer. Temp is what? Temp is normal variable. We don't use asterisks with the normal variables, right? So inside function अगर मुझे करना है a is equal to percentage d, value of b is equal to percentage d. Can I use here ab? Because this ab means this ab, right? जो यहाँ पर ab मेरे पास है, ये वाला है ना, ये वाला जो a है, it is having the address. ये वाला b जो है एड्रेस. तो अगर यहाँ पे मैंने सीधे a किया, so I should use what? Asterisk a, क्योंकि a और b के पास एड्रेस है ना, मेन वाले ab के का है ना. तो मुझे वैल्यूज प्रिंट करने हैं ना कि इसके अंदर जो फंक्शन के अंदर गए तो क्या है. ठीक है. अब जब मैं इसमें काम करूंगा, जब मैं रन करूंगा, अब आप देखोगे कि हाँ, इसमें एक परेशानी है कि जो आपने फंक्शन में लिखा क्या कि a और b एड्रेस भेजा ना, तो यहाँ पे कौन से है पॉइंटर्स, लेकिन ऊपर जो प्रोटोटाइप हमने लिखा वो नॉर्मल का लिखा. ये प्रोटोटाइप मैंने लिखा वो कहा मैंने ये नॉर्मल है, तो इसको एस्ट्रिक बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये इंटीजर, ये पॉइंटर दो, हम इसको भेज रहे हैं, मतलब इंट के आगे नहीं तो बाद में है ना, मतलब ये है ना बेसिकली एस्ट्रिक ए यहाँ पे. अब ए जो है आपका, आप ऑप्शनल आप लिखो वेरिएबल नेम या नहीं, क्योंकि वेरिएबल की इसका टेंशन नहीं है. इसको सिर्फ यहाँ पे ये बताने का है कि हम जो भेज रहे हैं इस फंक्शन को, एक फंक्शन आने वाली है, जब ये फंक्शन पे आ जाएगा, यहाँ पे कॉल पे आ जाएगा, हम कंपाइलर को तैयार रख रहे हैं कि एक फंक्शन आने वाली है जिसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, और जो भेज रही है दो पॉइंटर्स, दो एड्रेसेस, और वो कैच हो जा रहा है दो पॉइंटर्स में. डज मेक सेंस? ठीक है ना. लेट्स गिव इट अ गो नाउ. लेकिन जब स्वैप हो जाएगा, वापस आएगा ये मेन के अंदर, तो जो फंक्शन में हुआ था 27, वो आफ्टर फंक्शन वो रिटेन होगा, क्योंकि जो काम मैंने फंक्शन पे किया वो काम किस पे हो गया, ओरिजिनल एबी पे. क्योंकि आपने जो काम किया था इसमें, जो मेन के अंदर जो एबी था, पहले जब मैंने वैल्यू भेजे, यहाँ पे स्वैप तो हो गया, नीचे स्वैप तो हो गया, ऊपर चेंज कुछ नहीं था, ऊपर अपना ही था ऊपर की, क्योंकि ये वाले ए बी अलग थे, ये वाले ए बी अलग थे. आपने इस ए बी को फंक्शन में चेंज किया था, वो ऊपर का चेंज नहीं हुआ. ठीक है ना. अब जब मैंने रेफरेंस भेजा, पास बाय रेफरेंस में मैंने एड्रेसेस भेजे. ठीक है. जब मैंने वो एड्रेस भेजे, वो एक्चुअली वही ए बी है जो ऊपर है. अब अगर आपने स्वैप किया, वो उसको भी स्वैप किया. तो जब मैं मेन में वापस आया था, मैं एग्जैक्टली क्योंकि मैं उन्हीं पे काम कर रहा हूँ. एक हो गया कि मैंने आपको भेजा, आपकी कॉपी भेजी मैंने उस कमरे में, वहां उसका शेव हो रहा है, क्लीन शेव, लेकिन आप तो वैसे ही हो, आपको शेव है. ठीक है. अब मैं आपको कॉपी नहीं, आप ही का एड्रेस भेज रहा हूँ, यानी कि जो वो शेव कर रहे हैं वो आप ही के ऊपर कर रहे हैं. तो जब मैं वापस आ रहा हूँ, आपका शेव हो गया. ठीक है ना. तो यहाँ जब मैं वापस आया इनसाइड फंक्शंस के बाद, मैं मेन में वापस आया यहाँ पे, तो वहां पे ए में 20, बी में 7 ही है ना. जब मैं यहाँ पे वापस आया था, इसके फंक्शन के बाद जब मैं वापस आया था, जो वहां आपने ए एंड बी को किया वो रिफ्लेक्ट हो गया. इसी तरीके से जो आपका एरे है, इट इज ऑल्सो ए पॉइंटर, इट इज ऑल्सो एन एड्रेस. सो एरे जब आप भेजोगे, इट इज एक्चुअली पास बाय रेफरेंस ओनली. इट्स पास बाय, इट कैन नेवर बी पास बाय वैल्यू. सो जब एरे फंक्शन को, ठीक है ना, जब एरे भेजोगे किसको, तो वहां पे आप एक्चुअल एरे ही भेजोगे. जो भी आप वहां काम करोगे वो किस पे होगा, वो एक्चुअल एरे पे ही होगा. ठीक है ना. ये स्वैप का था. स्वाइप मींस दिस थिंग. आपको हो गया ना, जो आप अक्सर करते हैं ना स्वाइप, इसके मोबाइल फोन, इट इज अ स्वैप, और कुछ बोलते हैं स्वैप. एनीवेज, लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल. I don't want to save it. Okay, new. Insert code template C. Now I have a one symbolic constant hash define max 100. जो हम ये symbolic constant लिख रहे हैं, hash define max 100,
ये जहां जहां मैं मैक्स इस्तेमाल करूंगा वहां इसका वैल्यू 100 पेस्ट होगा, है ना। अक्सर हम जैसे रेट, हमें रेट होती है, हमारा कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, कुछ है, प्रोग्राम है अबाउट द फाइनेंस वगैरह कुछ होता है ना, वहाँ रेट डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं, वो हम ऊपर लिखते हैं। फिर 100 जगह वो इस्तेमाल हो रहा है अब मेरे प्रोग्राम में, अब रेट चेंज हो गई, मेरी 20 थी अब 15 ही हो गई, तो 100 जगह चेंज करनी है, तो हम वो एक जगह ऊपर रखते हैं एज अ सिंबॉलिक कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड अ सिंबॉलिक कांस्टेंट। व्हाट इज कॉल्ड? यानी कि ये सिंबल बन गया। हाँ, ग्लोबल वेरिएबल है, तो ऊपर जब भी हम करेंगे मेन के बाहर तो वो ग्लोबल ही है। और दूसरी बात ये है कि जहां जहां मैं मैक्स इस्तेमाल करूंगा उसकी जगह 100 रखूंगा। और जो एरे का अगर हम साइज देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, इट हैज टू बी द कांस्टेंट, इट कांट चेंज, ठीक है, इट हैज टू बी व्हाट। अब अगर मैं यहाँ पे एक इंट एरे बना रहा हूँ, ऑफ साइज में दे रहा हूँ क्या, मैक्स। पहली बात यह है कि यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल नहीं दे सकते आप, कोई वेरिएबल नहीं दे सकते यहाँ पे, यहाँ कांस्टेंट देना है, इट कांट चेंज लेटर ऑन। आपने साइज दिया, जो भी दिया आपने साइज, वो अब चेंज नहीं हो सकता। अब आप कहोगे मैं यहाँ पे ए वेरिएबल ए रखूंगा, फिर यूजर को पूछूंगा कितने साइज अरे की चाहिए, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाटएवर 10, तो फिर यहाँ पे वो ए रखूंगा मैं यहाँ पे, तो ये नहीं रख सकते, कांस्टेंट रखना है, कोई भी रखना है, कांस्टेंट रखा हमने, ठीक है। तो मैक्सिमम साइज हमारे एरे का कितना आ गया, 100, तो 100 ब्लॉक्स ऑफ एरे मुझे मिल गई। एक वेरिएबल में रखूंगा यहाँ पे लिमिट, ग्लोबल वेरिएबल मैंने रखा है, एक ग्लोबल वेरिएबल है लिमिट, और एक वेरिएबल है आई, जो लूप के लिए मुझे लगेगा। इनको मैंने ग्लोबल रखा क्योंकि हर जगह इस्तेमाल होगा, तो एक ही बार डिक्लेयर हमने किया, हर जगह करने की जरूरत। ग्लोबल वेरिएबल में ये फर्क है कि जो फॉर एग्जाम्पल मेन के अंदर है, इसका स्कोप सिर्फ इस मेन के अंदर है। ये जो लिमिट है, इसके बाद अगर मैं 50 फंक्शन बनाऊंगा, उन सब फंक्शंस में लिमिट और आई एक्सेस होगा, बिकॉज इट्स ए ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है ना। अब मैं पहला काम बोलूंगा यूजर को कि भाई आपकी कितनी एरे आपको चाहिए, वो मैं लिमिट बताऊंगा। क्या बताऊंगा, ठीक है ना। 100 तो मेरे पास है, अब यूजर बोलेगा मेरे को 10 ही चाहिए, 20 ही चाहिए, लेकिन लिमिट मैक्सिमम 100 है, 100 है। सो आई एम आस्किंग यूजर प्रिंटफ, हाँ बोलो आप। लिमिट ऑफ एरे, हाँ इसको बताएंगे हम कि भाई साहब ये 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेकर 100 आपका लिमिट है ना, और ये पकड़ेंगे हम, ठीक है। कैसे पकड़ेंगे, परसेंटेज डबल क्लोज कामा एम्परसेंट ऑफ, अब लिमिट में गया है, जो लिमिट आपका था कि कितना आप चाहते हो एरे, फर्ज आप कह के 5 मेरे को दे दो, हमारे पास एरे तो 100 की है, 1 से 100 तक हम कर सकते हैं जितना आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जितनी आपका लिमिट बोलोगे उतनी ही एरे में हम इस्तेमाल करेंगे। आपके पास फॉर एग्जांपल बिल्डिंग पूरी दी है 5 मंजिला, हम कह रहे हैं आपका 20 से कितने में चलेगा, आप कह रहे हैं हमें को 4 कमरे चाहिए, तो हम करेंगे 4 कमरे ये आपके है तो 100, ठीक है। मगर आप 100 से ज्यादा नहीं मांग सकते, 1 से कम नहीं मांग सकते, ठीक है। उसके बाद हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। क्या करेंगे कि हमें इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, सर्च करना है, सॉर्ट करना है, रिवर्स करना है एरे को, ठीक है। तो पहला काम है स्कैन करो एरे, यूजर से एरे मांगो और वो एरे डालो। सो आई से प्रिंटफ \n press 1 to insert elements into array, ठीक है ना, ओके। स्टैटिक एरे मतलब एरे तो स्टैटिक पॉइंटर ही है, वो तो सारे जो भी एरे हो गए, ओके। +1 to, ये क्या लिखा मैंने, मेरा फिर माउस ही घूम जाता है, इसका बड़ा ना ये लाइट कम है असल में,
तो लाइट बढ़ाते हैं फैन, थोड़ी सी लाइट करेंगे इंक्रीज, आई स्ट्रेन हो जाता है ना। आई यूजुअली कीप लाइट टू 0, वरना आई स्ट्रेन आ जाता है ना। तो स्क्रीन टाइम बहुत हाई है, पूरा दिन स्क्रीन पे ही होते हैं, इसलिए इसको 0 लाइट रखनी चाहिए। प्रेस 1 टू इंसर्ट एलिमेंट इनटू एरे, इसको कॉपी किया मैंने, कंट्रोल सी, प्रेस 2 टू डिस्प्ले, प्रेस 2 टू elements of array। ओके, तो फिलहाल हम ये पकड़ेंगे, यहाँ पे दो ही फिलहाल हमारे पास ऑपरेशन अभी है, इसके बाद हम इसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। सॉर्टिंग पे तो ये पहुंची थी, अब फिर से कर रहे हैं। ओके, अब ये स्कैन करेंगे हम, स्कैन ऑफ %d डबल क्लोज कामा, हाँ एक चॉइस वेरिएबल हम रखेंगे, इसमें हम डालेंगे, ठीक है। अब मैं ch रखूंगा सिंपल इसको। तो यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल मेरे पास है ch, कि 1 है 2 है क्या है। अब ये जो ch है, चॉइस यूजर ने जो चॉइस बोला, अगर 1 है तो हम इंसर्ट की फंक्शन बनाएंगे, उसको कॉल करेंगे, वहां जाएंगे। अगर 2 है तो डिस्प्ले की फंक्शन कॉल करेंगे तो वहां जाएंगे। तो इस ch को मैं स्विच को बुलाता हूँ, किसको, स्विच केस, SWITCH। अगर आप स्विच भूल गए हो तो देखो यहाँ पे, क्योंकि मैं C और इसको मिक्सअप कर रहा हूँ। ये स्विच है आपका, CH है। अगर CH में 1 है तो केस 1, केस, इसको केसेस होते हैं, क्या होते हैं, केस 2 और डिफॉल्ट, ये ऐसे होता है। यानी कि अगर CH, इफ CH इज इक्वल टू 1, इफ CH इज इक्वल टू 2, तो यहाँ जाएगा, जंप मारेगा इधर। अगर CH 1 है तो ये 1 पे जाएगा, लेकिन 2 भी करेगा, फिर ये सीधे जाता है। इसलिए इस कुछ करने से पहले यहाँ पे ब्रेक मारना पड़ता है हमें, ताकि ये नीचे ना जाए, ठीक है, वरना ये नीचे भी जाएगा। आपने कहा 1, वो 1 पे तो गया, या आपने कहा 2, वो 2 पे तो गया, 2 पे आगे जाएगा डायरेक्ट, ये स्किप करेगा, ये वाली चीजें स्किप करेगा ऊपर वाली। जैसे केस 1 2 3 4 5 6 है, आपने 5 का, ये डायरेक्ट 5 पे जाएगा, यानी कि ये वाले स्किप हो गए, लेकिन 5 के बाद सारा करेगा। इसलिए हम ब्रेक करेंगे ताकि वो स्विच के बाहर निकले। स्विच केस यहाँ पर है, ये एंड ऑफ स्विच है। तो ब्रेक इसको हमेशा कहाँ ले जाएगा, एंड ऑफ स्विच। ब्रेक लगता है ताकि वो किसी इस ब्लॉक से बाहर निकाले, ठीक है। प्रोग्राम एंड नहीं करता, बल्कि ब्लॉक से बाहर निकालेगा। इस, हाँ लूप वगैरह है या स्विच केस है, इससे बाहर निकालेगा आपको ब्रेक करके। अब अगर केस, अगर आपने 1 प्रेस किया है, तो आप करना क्या चाहते हैं, तो इंसर्ट को कॉल करें, हम एक फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट, इसको क्या भेजोगे, एरे। लिमिट जो है वो पता ही है मेरे को, है लिमिट ऊपर ही है, वो ग्लोबल है, वो ग्लोबल है, यानी कि आपने लिमिट में डालना है यहाँ पे कोई चीज, वो खुद ही एक्सेस होगी इस इंसर्ट फंक्शन को। अगर आपने 2 प्रेस किया है तो एक फंक्शन हम कॉल करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज डिस्प्ले, इसको मैं भेजूंगा AR, ठीक है। फिर ये डिफॉल्ट पे जाएगा। डिफॉल्ट को मतलब ये होता है कि अगर इनमें से कोई चीज नहीं हुई थी, ना आपने 1 प्रेस किया, ना आपने 2 प्रेस किया, आपने वो चीज प्रेस की जो मैंने नहीं बोली थी आपको, इसमें जो नहीं थी, जो केसेस में नहीं है, तो मतलब ये कि आपने रॉन्ग चॉइस की है। आपने क्या किया है, तो उसमें मैं प्रिंटफ क्या बोलूंगा आपको, यहाँ पे \n wrong try again, ठीक है। ये अगेन है, इसको क्या हो गया, ट्राई अगेन, फिर से ट्राई कर लो भाई साहब, ठीक है, ठीक। अब अगर केस 1 है, यहाँ पे 1 प्रेस किया है आपने, तो इंसर्ट कॉल हो जाएगी, इंसर्ट फंक्शन बनानी पड़ेगी, वो हम बनाएंगे, ये है ना एंड ऑफ मेन, यहाँ पे इसको लिखा था मैंने, ये कहाँ गया, अच्छा वो पुराना प्रोग्राम था, ठीक है। एंड ऑफ मेन, यहाँ पे हम इंसर्ट फंक्शन करेंगे,
क्या करेंगे? तो पहला रिटर्न टाइप फंक्शन का, फिर फंक्शन नेम क्या है, फिर एरे भेजो आप, ARE नाम रख रहा हूं मैं, यहाँ पे बॉक्स रखना है, और जब आपने भेजा वहां खाली नाम भेजना है, और जब आप भेज रहे हो जैसे आपने वहां पे एम्परसेंड ऑफ ए भेजा था, एड्रेस ऑफ ए भेजा था, ठीक है, वैसे ही ये AR है, क्योंकि AR इज द एड्रेस, जो AR नाम है दिस द एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक ऑफ array. AR is the address of first block of, so this is what, this is an pass by reference only. तो जो भी काम आप यहाँ पे करोगे वो ऊपर वाली एरे में ही होगा, ठीक है ना, ओरिजिनल एरे पे होगा वो, बिकॉज एरे इज ए पॉइंटर. यस, अब मुझे इंसर्ट करना है, पहले मैं प्रिंटफ कहूंगा, यहाँ पे प्रिंटफ \n, थोड़ा सा ही देंगे, इंसर्ट ऑपरेशन है, ठीक है ना. अब हम क्या कैसे इंसर्ट करेंगे, हम लूप चलाएंगे, फॉर i is equal to 0, i is less than, जितना लिमिट है उतना, लिमिट ने बोला, हमने बोला 5 एलिमेंट चाहिए, सो 0 से 4 तक चलना चाहिए, अगर लिमिट 5 है 0 से 4, अगर लिमिट 50 है 0 से 49 तक चलना चाहिए, सो लेस देन लिमिट i प्लस प्लस. अभी क्या कहूंगा मैं, printf enter AR of %d, ओके. एंटर %d, यहाँ पे AR of i को हम करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे i लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं, एंटर AR of %d, AR of 0 आएगा, क्या आएगा, AR of 0, यहाँ पे बैकस्लैश n करेंगे ताकि ये दूसरी लाइन पे आ जाए, एंटर AR of %d, AR of i पहले क्या होगा 0, एंटर AR of 0, वो मैं स्कैन करूंगा, क्या करूंगा, किस में डालेंगे, %d डबल क्लोज कामा एम्परसेंड ऑफ AR of i, AR of, अगर i पहला 0 है तो आपने एंटर करना है AR of 0, ये सिर्फ दिखाने के लिए, ये सिर्फ क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा एंटर AR of %d के बदले i का वैल्यू आएगा यहाँ पे AR of 0, और डाल कहाँ रहे हो, जो भी इस कीबोर्ड से आएगा एम्परसेंड ऑफ AR of 0, एलिमेंट पहले एलिमेंट पे वो घुस जाएगा, एम्परसेंड मींस एड्रेस ऑफ ड्रॉप इट देयर, ठीक है ना, घुस गया, तरीके से वो एरे को स्कैन करता जाएगा, किया आपने. इसका हमें ये भी लिखना पड़ेगा प्रोटोटाइप, Ctrl+C, क्योंकि आपने कॉल के बाद लिखा ना ये, अगर कॉल से पहले ये फंक्शन लिखी होती प्रोटोटाइप की जरूरत, क्योंकि कंपाइलर ने पहले ही फंक्शन देखी थी, अब उसमें कॉल में परेशानी नहीं होगी. सो प्रोटोटाइप्स आप लिखें कहीं पे, यहाँ पे इसके बाद हम प्रोटोटाइप सीखेंगे, ठीक है. तो आप AR लिख भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप AR लिखो तो मत लिखो. इसी तरीके से मैं डिस्प्ले करूंगा, अब ये ना डिस्प्ले फंक्शन, मैं इसको कॉपी करूंगा सीधे, Ctrl+C, Ctrl+V, वाइड डिस्प्ले, इसका नाम क्या रखेंगे, अब मुझे डिस्प्ले करना है, आइसोलेशन लिमिट, अब एंटर नहीं करना है मुझे, प्रिंट करना है ना, प्रिंटफ बैकस्लैश n भी नहीं करते, एक ही लाइन में दिखाएंगे, ठीक है, थोड़ा स्पेस करके, AR of %d इज इक्वल टू %d, स्कैन तो नहीं करना, प्रिंट करना है ना, स्कैन तो नहीं करना ना, प्रिंट करना है, यानी कि यहाँ पे आएगा ऐसे AR of %d, AR of 0, क्योंकि i है ना, इज इक्वल %d, इस % क्या लगाऊंगा मैं, क्या लगाऊंगा इस %d की जगह, एग्जैक्टली
AR of I, क्योंकि अब AR of I प्रिंट करना है ना मुझे, whatever is at the AR of I, print that will be printed in this percentage. Okay, Control S. सीरासमा array op लिखूंगा मैं इसको .c, नया आप करेंगे ना, give it a go. F5, इसका प्रोटोटाइप नहीं है ना, प्रोटोटाइप इसका, इसलिए बोल रहे हैं ना ये क्या चीज है, कंपाइलर को समझ नहीं आ रहा ये क्या है, तो उसको कॉल मारेंगे यहाँ पे, प्रोटोटाइप देंगे उसको, फिर इसको परेशानी नहीं होगी कुछ, कंट्रोल भी, ठीक है। ये AR हटा भी सकते हो आप, कोई मसला नहीं है, इसको रखा मैंने, इसको छोड़ा मैंने, कि दोनों चीज चल देंगी। तो यहाँ पे आपको एक सेकेंड, ये इसमें स्क्रीन लाते हैं, एंटर द लिमिट ऑफ एरे, पहले लिमिट बोल रहा है, मैंने बोला मेरे को 5 एलिमेंट चाहिए, सो प्रेस 1 टू इंसर्ट एंड, अब आप क्या करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, तो डिस्प्ले करना चाहते हैं, इंसर्ट करूंगा मैं, क्योंकि तो एरे है नहीं, इंसर्ट ऑपरेशन आ गया, ये एंटर एरे ऑफ 0 वैसे ही आ गया जैसे वहां पे था, तो आपने कहा भाई मेरे को 11 है, सेकंड एलिमेंट 22, थर्ड एलिमेंट 33 और 44 एंड देन 55, और प्रोग्राम खत्म, क्योंकि उसके बाद डिस्प्ले इसने किया नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने 1 दबाया था, है ना, 2 दबाने के काम ही नहीं आया, जब 1 किया इसने, ये यहाँ पे आ गया, इसने अपना इंसर्ट फंक्शन जब यहाँ पे आ गया, 1 दबाया आपने, 1 यहाँ पे जाएगा, इंसर्ट करेगा, इंसर्ट के बाद ये इंसर्ट फंक्शन के ऊपर जाएगा, ये वाला, ये करेगा ये सारा इंसर्ट, क्या ना, एंटर एयर ऑफ 0, एयर ऑफ 1, सो ऑन, फिर जब वापस आएगा यहाँ पे क्या मारेगा, ब्रेक मींस एंड ऑफ द स्विच, और प्रोग्राम खत्म, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये वापस आए, मैं क्या चाहता हूँ ये फिर मुझे करके दे डिस्प्ले, ठीक है, आई डोंट वांट टू गो, नहीं ब्रेक कहाँ हटाएंगे, अगर हम ब्रेक हटाएंगे फिर इंसर्ट के बाद डिस्प्ले के बाद, अगर उसके बाद हमने सर्च के बाद कुछ भी लिखा, वो सारे केसेस होंगे, ऐसा तो नहीं करना है। तो जब ये ब्रेक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसको हमें मांगना है चॉइस, आप कंटिन्यू करना चाहते हो या भागना चाहते हो, यहाँ पे मैं इसको कहूंगा प्रिंटर \n press 1 to continue, ओके, और बाकी अगर उसने कुछ भी दे दिया तो वो भाग कर जाएगा, scanf %d double close comma ampersand of कुछ रखेंगे चॉइस या कंटिन्यू रखेंगे, हाँ कंटिन्यू, ये कंटिन्यू वेरिएबल में रखेंगे, अब कंटिन्यू भी कीवर्ड है, चॉइस ही रखेंगे, ठीक है, तो ये चॉइस पहले यहाँ पे होना चाहिए, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आप बताओगे मुझे, आप नहीं बताना, दिस गाय विल टेल, मैं बस वांट टू कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, स्कैन अप पर्सन या पर्सन चॉइस आ गया, अगर चॉइस क्या है, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर चॉइस क्या है तो मेरे को क्या करना चाहिए, वरना क्या करना चाहिए, अगर चॉइस 1 है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, ऊपर वापस, और यहाँ पे लिमिट तो नहीं मांगना मेरे को, लिमिट तो मैं कर चुका हूँ, यहाँ पे मुझे ये मेनू वापस आना चाहिए, मुझे इधर जाना है फिर वापस, आई हैव टू गो बैक टू वेयर, हियर आई विल से हियर फॉर एग्जांपल लेबल अगेन, लेबल हम लिखते हैं कैपिटल में, कोई भी लेबल अगेन, हाँ, और फिर कोलन, ठीक है, या जंप हियर और जो भी आप लेबल लगाना चाहते हैं, यानी कि अगर चॉइस 1 है, अगर चॉइस क्या है, आई शुड गो टू, आई से सिंपली से गो टू अगेन, हाँ, क्योंकि मुझे और भी ऑपरेशंस करनी है, प्रोग्राम खत्म नहीं होना चाहिए, मुझे सर्च करना है, सॉर्ट करना है एरे को, हाँ,
इंसर्ट वाले आइटम्स रहेंगे वहीं पे। एक बार इंसर्ट किया, इंसर्ट करके भाग रहा था ना, अब इंसर्ट किया मैंने, अब मुझे चाहिए कि ये, अब मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले भी करूँ, कल मैं सर्च भी करूँ, सॉर्ट भी करूँ, रिवर्स करूँ, जो भी मर्जी है, लेकिन प्रोग्राम खत्म तब होगा जब आपने 1 नहीं दबाया। तो एल्स में क्या कहेंगे हम, प्रिंटफ \n थैंक्स फॉर यूजिंग आवर सिया व्हाटएवर। क्या भाग रहा है ना, तो भागो, फिर ये रिटर्न 0 पे भाग जाएगा, इसके बाद यहाँ जाएगा। यस, गो टू द कीवर्ड, इट विल मेक इट जंप टू दिस लेबल, वेयरएवर दिस लेबल इज। ये ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, जहां पर भी ये लेबल है उधर लेके जाएगा हमें। हाँ, जहां पे ये लेबल जो आपने लिखी, जरूरी नहीं है अगेन लिखो, कुछ भी लिखो, अब अपना नाम लिखो, ठीक है। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? हाँ, go to is a keyword which will jump to that particular location। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर लोकेशन कौन है, ये, यानी कि फिर से आएगा वापस, तो फिर से बोलेगा ये प्रेस 1 टू इंसर्ट, 2 टू डिस्प्ले। आप डिस्प्ले करेंगे 2, क्योंकि इंसर्ट तो कर चुके हैं हम, अब 2 करेंगे हम, है ना। ओके, लेट्स ट्राई टू डू इट इफ देयर इज नो एरर। दो टर्मिनेटर कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, अब देखें आ रहा है एंटर लिमिट ऑफ एरे 1 टू 100। मैंने कहा 5 एलिमेंट चाहिए मेरे को बस। 1 टू इंसर्ट, इंसर्ट ऑपरेशन आ गया, मैंने 11 दिया, 22, 33, 44 एंड 55। अब प्रेस 1 टू कंटिन्यू बोल रहे हैं, अब भाग नहीं रहा, मैं कहूंगा 1, आई एम सेइंग 1। if the choice is 1 it will jump where, ये ऊपर जाए मारेगा जॉब, है ना। अब फिर से वही आ रहा है, ये प्रेस 1 टू इंसर्ट, 2 टू डिस्प्ले आ रहा है ना। अब मैं इसको 2 बोल रहा हूँ, तो ये मुझे डिस्प्ले ऑपरेशन कर रहा है, इसने दिया वो डिस्प्ले करके मुझे। अब फिर से बोल रहा है, भागना चाहते हो या फिर से करना चाहते हो, मे बी मुझे और भी ऑपरेशंस वहां पे, अभी मेरे को नहीं है, मैं 1 के बगैर कुछ और डालूंगा तो ये भागेगा, ठीक है, इट इज गॉन। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि पहले वो पुराना वाला स्क्रीन क्लियर हो, जब नए से मैं जब मारूंगा, जो पुराना स्क्रीन था वो क्या हो, क्लियर। यू विल टेल मी अबाउट दैट, हाउ वी क्लियर द स्क्रीन। यस, सिस्टम, जो आपको टर्बो सी में आप पढ़ते थे ना, क्लियर स्क्रीन, CLR SCR, यहाँ पे सिस्टम CLS होता है NCC में, कंट्रोल एस, यानी कि जब मैं ये काम करूंगा, ठीक है, आई एम सेइंग लिमिट, मेरे को अभी 4 एलिमेंट चाहिए खाली, ठीक है। 1 टू इंसर्ट, अब मैं दूंगा इसको, भाई मेरे पास है 11, 12 और 13 एंड 44। 1 टू कंटिन्यू, जब मैं 1 टू कंटिन्यू करूंगा ऊपर वाला स्क्रीन क्लियर होगा, ठीक है। और फिर से आएगा वो ऑपरेशन, कौन सी, प्रेस 1 टू इंसर्ट एंड 2 टू डिस्प्ले, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ 2 टू डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले ऑपरेशन आ गया तो ये डिस्प्ले दे रहा है 1, 22, 30 जो भी थे। अब अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग चॉइस देता, केस जो मेरा नहीं था, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 टू दिस, अब 1 टू इंसर्ट, 2 टू डिस्प्ले, मैं कुछ और लिखता हूँ 6, जो कि वहां पे नहीं है, तो ये डिफॉल्ट में चला जाएगा। ट्राई अगेन, लेकिन भाग नहीं रहा, लेकिन भाग, फिर rest to 1 to continue, was to continue, I can correct it। 1 to insert, 1 to insert बोलूंगा, so it can insert the elements whatever, क्योंकि मैंने एक ही एलिमेंट दिया था ना, लिमिट मैंने एक दिया था, इसने एक ही एलिमेंट पकड़ा। फिर से बोल रहे हैं 1 to continue, अगर if I want again insert, you can say again insert, हाँ, ठीक है। मतलब मैंने पहले एरे दी थी एक की, अब मैं दूंगा 4 की चाहिए मेरे को, वो ओवरराइड करेगा ना उसको। लेकिन मैंने जो 1 कहना चाहिए था, 1 to continue, 1 to insert, ओके 1 अब फिर से उसी में, क्योंकि लिमिट तो हमने पहले दे दिया, अगर हम अगेन लिमिट पे रखेंगे तो वो लिमिट भी कर सकता है, ठीक है, वो लिमिट चेंज कर सकता है, बट आई डोंट वांट दैट एनीवेज। सो 1 टू बैक 3 टू एग्जिट करूंगा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। हाँ, हमने स्वैप पढ़ा, पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यूज पढ़े, ये घर में इसको अच्छे से देखना है, ठीक है, और उसके बाद ये कोड करना है, एंड ट्राई टू डू योर थिंग्स। You have to,
you have to write it on the compiler and execute it. जब तक आप वो करोगे नहीं तो फिर फायदा नहीं आएगा कुछ, ठीक है? Unless and until you don't write of your own, errors नहीं आते हैं, आप खुद नहीं करते हो, तब तक आप सीखोगे नहीं, ठीक है ना? That's